اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سزائی یافتہ قیدی کو نجی اسپتال کی سہولت دینا فوجداری انصاف کے نظام کو متاثر کرے گا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے ایک نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ ابھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس میں کچھ اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا نکات ہیں اس درخواست کا، مزید متن کیا ہے، بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمیں جوائن کریں۔ طیب بتائیے گا۔ جی، حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کو باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نظرثانی درخواست دائر کی ہے اور نظرثانی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے تمام استدعاؤں کو عبوری مرحلے میں منوعاً منظور کر کے مقدمے کے اصل بنیادی مسئلے کو ہی ختم کر دیا، جو کہ عدالت عظمیٰ کے اپنے ہی طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے کسی سزا یافتہ قیدی کو نجی اسپتال میں علاج کی سہولت دینا پورے فوجداری نظام میں انصاف کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسے مطالبات کا دروازہ کھل جائے گا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے متعلقہ محکمے کو اس معاملے میں باقاعدہ فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ حکم جاری کرنے سے قبل کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے اصول فطرت اور انصاف کے منافی ہے۔ جیل رول 1978 میں بھی کسی قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جیل رولز کے بھی خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے سے جیل رولز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے پاکستان پروویژن رول 1978 کے رول 197 کے قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دیا ہے اور اس سے جو ہے وہ نمایاں طور کے اوپر ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10 سے منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ مقدمے میں بغیر فریقین کو نوٹس جاری کر کے آرڈر دینا بھی آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے۔ پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کے سنجیدہ قانونی نقطے کو مؤخر کرتے ہوئے یک طرفہ عبوری حکم نامہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا، تو اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ اپنے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اچھا طیب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسے جب فیصلے آتے ہیں تو کیا ان سے پہلے عدالت کی جانب سے کوئی نوٹس جاری کرنا لازمی ہوتا ہے، یہ ایک مینڈیٹری ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اس درخواست میں بھی یہی نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ جو بھی سپریم کورٹ کی درخواست دائر ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی فریق بنائے گئے ہوتے ہیں ان تمام کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کا موقف سنا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کل گزشتہ روز جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں نہ ہی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس تھا اور نہ ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس تھا، اور وہ عدالت میں بار بار کہتی بھی رہے کہ آپ ہمیں نوٹس جاری کریں، ہمیں سنیں، ہمارا موقف سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کوئی حکم جاری کرے۔ تاہم عدالت نے جو ہے ان کو نوٹس لیے بغیر جو ہے وہ کل کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کب سنا جاتا ہے، اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے، مزید اس حوالے سے آپ سے جانتے رہیں گے۔ فی الوقت آگاہ کرنے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے منڈی بہاؤالدین سے، جہاں پر کار پر فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ دو افراد قتل ہوئے ہیں۔ ملزمان نے چلتی کار پر اندھا دھند فائرنگ کی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مقتولین میں 45 سالہ ظفر اور 25 سالہ حسنین شامل ہیں۔ اسی پر ظہیر سیال ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ظہیر، اس حوالے سے کیا بتایا جا سکا ہے، کیا واقعہ ہے یہ؟ جی بالکل، منڈی بہاؤالدین ضلع بھر میں اقدام قتل کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح کا افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے پولیس سرکل فاڑیہ کی حدود میں پیش آیا ہے، جہاں پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح ملزمان نے چلتی ہوئی کار پر فائرنگ کر کے 3 افراد کو گولیاں مار دی ہیں۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد 45 سالہ ظفر اور 25 سالہ حسنین کو موقع پر قتل کر دیا ہے، جبکہ تیسرے نوجوان جو ہے وہ زخمی بتایا جا رہا ہے۔ دوہرے قتل کا واقعے کے بعد ملزمان جائے وقوع سے فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس تھانہ فاڑیہ نے دونوں افراد کی لاشوں کو تحویل میں لے کر DHQ فاڑیہ اسپتال منتقل کر دیا ہے، جبکہ نامعلوم ملزمان نے عدالت پیشی سے واپسی پر مقتولین کی کار کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آگاہ کریں ظہیر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، کمالیہ میں موٹر سائیکل سوار چالان سے دل برداشتہ ہوا ہے۔ نوجوان نے چالان کے پیسے نہ ہونے پر موٹر سائیکل کو آگ لگا دی ہے۔ ہیلمٹ نہ ہونے پر ٹریفک وارڈن نے نوجوان کو پکڑا تھا۔ یہ موقف اس کا سامنے آیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جانب سے دہائیاں دی گئیں کہ مجھے جانے دیا جائے، گھر میں فوتگی ہو گئی ہے۔ نوجوان پولیس کو بار بار خالی جیبیں بھی چیک کرواتا رہا۔ پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی۔ شہری علی شان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، یہ شکایت درج کی گئی ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے شہری کو حراست میں لے کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ کمالیہ میں موٹر سائیکل سوار چالان سے دل برداشتہ ہوا
हुआ है और नौजवान ने चालान के पैसे न होने पर मोटरसाइकिल को आग लगा दी है। और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आपको बता दें कि कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। कोरंगी नंबर 5 बताया जा रहा है, यहाँ पर फायरिंग से स्कूल मुलाजिम को कत्ल किया गया। आपको बता दें कि मकतूल की शनाख्त इम्तियाज़ के नाम से सामने आई है। मुलजिमान ने दफ्तर में घुसकर मकतूल को फायरिंग का निशाना बनाया है। नॉर्थ कराची में भी वकील और प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट किया गया था। इस हवाले से बोल ने खबर भी नशर की थी, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। कोरंगी नंबर 5 में फायरिंग का यह वाकया रिपोर्ट हुआ है। स्कूल मुलाजिम कत्ल कर दिया गया है। खुरम गुलजार से बात करेंगे। खुरम, बताइएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका है अभी तक? देखिए, ये कोरंगी में डीएमसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक दफ्तर है जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के वाकये में इम्तियाज नामी शख्स जाँ बाक हुआ है, जो कि सरकारी महकमे में क्लर्क बताए जा रहे हैं। साथ ही मकतूल की जो अपनी अहलिया से अलहदगी थी, पुलिस हुक्काम ऐसा बताते हैं। साथ ही मकतूल ने जो है वो दूसरी शादी कर ली थी। मकतूल का ताल्लुक एक सियासी जमात से भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि सारे वाक़े की जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। इस वाक़े में एक ठीक है, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि फेस्को में अरबों रुपए का घपला सामने आया है। सीईओज मुलविस निकले हैं। बताया जा रहा है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से नोटिस भी ले लिया है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 11 अरब से जायद का घपला सामने आया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे, फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद, बताइएगा। जी देखिए, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अरबों रुपए का घपला जो है वो सामने आया है, जिसमें 2 सीईओज मुलविस निकले हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने फेस्को में 11 अरब 96 करोड़ रुपए से जायद के घपले का नोटिस लेते हुए FIA की जानिब से फेस्को के 2 सीईओज को गिरफ्तार किए जाने पर ब्रीफिंग तलब कर ली है। फेस्को की जानिब से सितारा एनर्जी लिमिटेड के साथ तवानाई की खरीदारी में मुबैना तौर पर 11 अरब 96 करोड़ रुपए की बदउनवानी की गई थी। इसके अलावा कायमा कमेटी ने बलोचिस्तान में LPG की तरसील में हायल रुकावटों पर ओगरा से दोबारा ब्रीफिंग भी तलब कर ली है, जबकि इजलास में PTA और कस्टम्स हुकाम दरामदशुदा मोबाइल फोन की कीमतों के तयन पर भी ब्रीफिंग देंगे। सही है जी, ठीक है, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका फहद। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की अहम मुलाकात हुई है। ईंधन की कीमतों से मुतालिक अवामी रिलीफ के लिए फौरी इकदाम की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद बात करेंगे, फहद चौधरी हमें ज्वाइन करें। फहद, ये अहम मुलाकात है, बताएगा क्या सामने आया इसमें? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलाआत भी शरीक है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुंचने और ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की है, और साथ ये भी हिदायत की कि अली परवेज़ मलिक फिलफौर कराची पहुंचकर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात करें और मकामी तौर पर तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी के हवाले से इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डीजल की मिकदार का ज्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। इसकी कीमतों में कमी के लिए वज़ीर पेट्रोलियम बजाते खुद रिफाइनरीज से मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा किया गया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें देखी गई। एजेंट माफिया भी सरगर्म है। शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान साहब, ये अचानक दौरा किया गया, बताएगा क्या यकीन दहानी कराई गई है इसमें? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अचानक लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। जब वो वहां पहुंचे तो कई घंटे से पासपोर्ट के हसूल के लिए कतारों में खड़े हुए शहरी फट पड़े। शहरियों ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस का अमला जो है वो दानिस्ता तौर पे काउंटर से उठ जाता है ताकि लोग कई घंटे इंतजार के बाद एजेंट से राब्ता करें और एजेंट के थ्रू जो है वो हजारों रुपए देने के बाद पासपोर्ट के इजरा के लिए दरखास्त दें। तो इस पर मोहसिन नकवी ने शहरियों की आरा ली और शहरियों ने खुलकर जो है वो अपनी शिकायत वज़ीर दाखिला को बताई। शहरियों ने बताया कि वो गुज़श्ता 4 घंटे से कतारों में खड़े हैं और अभी तक उनकी बारी नहीं आई। एक शहरी ने बताया कि उन्होंने आज पासपोर्ट जो है वो यहाँ से वसूल करना था, लेकिन उन्हें अमला ने ये बताया कि उनका पासपोर्ट अभी तक प्रिंट होके यहाँ पे नहीं पहुंचा, जबकि जो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट हैं वो 5500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक वसूल करने के बाद पासपोर्ट के इजरा के अमल को आसान बनाते हैं और उनके कहने पे पासपोर्ट का अमला जो है वो फिल फोर प्रोसेस भी कर देता है। वहाँ खड़े हुए शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिसपे मोहसिन नकवी ने डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस शहजाद असलम को बदनज़मी और फराइज से गफलत बरतने पे फिलफोर ओहदा से हटा दिया। पासपोर्ट ऑफिस
कि बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पे डिप्टी डायरेक्टर FIA एंटी करप्शन सर्कल को भी फिलफोर वजीर दाखिला ने ओहदा से हटाने का हुक्म दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत सुनी और उनसे माजरत भी की। वजीर दाखिला ने कहा कि वो इस मामले पे जो है वो जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे और ये बिल्कुल आप रवैया सही कह रहे हैं, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाई भी गई है, फौरी तौर पर मअतली भी अमल में आई है। इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नारोवाल में लड़की ओबाश लड़कों से बचते हुए बस से टकरा गई है। अफसोसनाक हादसा रिपोर्ट हुआ है। लड़की को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल की जानिब से नोटिस लिया गया है और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DPO की जानिब से बताया गया कि 2 ओबाश लड़के जो थे वो लड़की का पीछा कर रहे थे और अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ नारोवाल में, जहाँ पर लड़की ओबाश लड़कों से बचते हुए बस से टकरा गई है। हाफिज़ एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब वक्त निकालने के लिए। ये 3 चीज़ें हैं जो 3 अहम नुकात हैं इस हवाले से। जो रिव्यू पटिशन है आर्टिकल 10A का हवाला, आर्टिकल 25 और ये जो नोटिस जारी किए बगैर एक फ़ैसला जारी किया गया है फ़रीक़ैन को, उस हवाले से बताएगा कि अब इसमें मज़ीद क्या हो सकता है, क्या इसमें ऑप्शंस बाकी हैं। हाफिज़ एहसान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है? जी अब क्लियर है आपको मेरी आवाज़? जी अब क्लियर है। जी सर, मुझे ये बताएगा ये जो रिव्यू पटिशन दायर की गई है हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर, सो आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया है, आर्टिकल 25 और ये जो नोटिस जारी किए बगैर फैसला जारी किया गया है, इस पर कुछ खदशात और कंसर्न्स का इजहार किया गया है। अब बताइएगा कि इसके बाद फिर क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके अंदर जिन सर्टन आर्टिकल्स को रेफर किया गया, जिसके अंदर आर्टिकल 4 या आर्टिकल 9 की बुनियाद के ऊपर एक फैसला किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको 4 मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहिए। एक इसका एंगल डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट जो है होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए और जो आपका पेशेंट है, प्रिजनर जो है, उसकी बेस्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना चाहिए, इसमें 2 राय नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये इख्तियार था या उसकी जुरिस्डिक्शन थी कि वो इस तरह का ऑर्डर जो है आर्टिकल 4 या आर्टिकल 9 की बुनियाद या आर्टिकल 14 के अंदर जाके करे। तो उसके अंदर मैं समझ ये हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर है, चूँकि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आ चुकी है और उसके अंदर जितने भी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के पार्स हैं वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चली गई है, चाहे वो आर्टिकल 184(3) की थी या उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, वो अब चली गई है आर्टिकल 175(e)(f)(g) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो जब ये पटिशन पहली दफ़ा फाइल हुई थी तो उस वक्त भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था और रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है और ये मैटर कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब अदालत के अंदर ये मामला आया और उन्होंने ओवर रूल किया तो पहले अदालत को ये चाहिए था कि डिटर्मिन करती कि क्या मुझे आइन और कानून के नीचे जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि आर्टिकल 175(2) कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, FCC हो, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती जितनी देर तक आइन और कानून जो है उसको इख्तियार नहीं देता। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया 185 के नीचे जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का है और वो इख्तियार उन्हें नहीं है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि बगैर नोटिस दिए जो है फेडरेशन को बगैर सुने हुए फैसला दिया है। नंबर 3 ये है कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन उसका फैसला दिया है। और चौथा ये है कि जितने भी इस तरह के मैटर्स आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, पहले अदालत बोर्ड बनाती है और बोर्ड के रिकमेंडेशंस के बाद अदालत फैसला करती है कि क्या इसका इलाज जो है वो जेल के अंदर है या जेल से। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस फैसले को लेकर कुछ अभाम है। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की है। बानी PTI को भी सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये हर कैदी का हक होता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है कि मुलाकातों का फैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद बानी PTI के पास अब हमदर्दी का कार्ड रह गया है। कहते नहीं सुन, इनके इलाज मुआवजे के हवाले से हमने कोई ऐसी बात की हो कि जी जिससे ये तासुर कायम हुआ हो कि हम इनकी सेहत को लेके कोई तंज कर रहे हैं या उस पर कोई ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो ये
हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएं आइन कानून के मुताबिक, और वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रहेंगी। इस्तीफों के बाद असेंबलियां तोड़ने, 26 नवंबर, 9 मई सब कुछ करने के बाद एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड, मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी। बाकी हर एक का हक है। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया, ताकि इनकी तसल्ली हो सके, इनको बहाना ना मिले। आपको बताएं कि बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त बाकायदा अब दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत ने मुताल्लिका फरीक को नोटिस दिए बगैर हुक्म जारी कर दिया है। आपको बता दें, कहा गया कि अदालत ने कैदियों से मुताल्लिक 1978 के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल में इलाज की सहूलत देने से दीगर कैदियों के लिए भी ऐसी दरख्वास्तों की राह खुलेगी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ देना अदालती उसूलों और आर्टिकल 10A और 25 के मुनाफी है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर मुख्तलिफ कानूनी एतराज़ात उठाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने मुतल्लिका फरीक को नोटिस जारी किए बगैर हुक्म दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और मुतल्लिका महकमे को फरीक नहीं बनाया गया। कैदियों से मुतालिक 1978 के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। कानून की रूह से हटकर हुक्म देना कानूनी खामी है। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की ज़मानत देता है। तहम फ़िरक़ैन के नोटिस जारी किए बगैर हुक्म जारी किया गया। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के नुक्ते को मौखर किया गया। एक तरफा तौर पर अबूरी हुक्म जारी किया गया। अबूरी मरहले पर हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। फैसला सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूलों के मुनाफी है। दरख्वास्त गुसार के मुताबिक फैसले से दीगर कैदियों के लिए भी इसी नौयत के मुतालबात का रास्ता खुल सकता है। पूरा फौजदारी इंसाफ का निज़ाम मुतासर होने का खदशा है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती हुक्म को असूल फितरत और इंसाफ के मुनाफी करार देते हुए फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। हुकूमत की जानिब से रिव्यू पटिशन तो अब दायर कर दी गई है। कुछ बड़े अहम सवालात, अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। ख़ास तौर पर अगर बात करें आर्टिकल 10A के हवाले से, आर्टिकल 25 के हवाले से, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि कोई भी फैसला जारी करने से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं फरीकैन को, वो जारी नहीं किए गए हैं और वो जारी किए बगैर ही फैसला सुना दिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ एक एतराज़ ये भी सामने आया था कि जो समाअत थी वो इस हवाले से थी कि अहले खाना से मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी और हफ्ते में कितने रोज़ करवानी है, लेकिन बग़ैर किसी देर लगाए इस तरह का फैसला सामने आ गया है। इसी पर हम बात करेंगे। हारिस अजमत हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया हारिस साहब वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले कहिएगा, ये जो रिव्यू पटिशन दायर की गई है इसमें बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं। आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया, आर्टिकल 25 की बात की गई है और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि नोटिस जारी किए बगैर जो फैसला जारी हुआ है इस पर कदगन लगाई गई है। तो बताइएगा कि अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि ये रिवर्स बैक हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हर पार्टी के ऊपर ये तो लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करे एज इज, लेकिन हर एग्रीव्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिव्यू हो जाए तो वो फैसला वापस हो जाता है। ये कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों साइड कानून को फॉलो कर रही हैं और यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक पार्टी के हक में फैसला आ जाए तो वो कहे जी बहुत अच्छा फैसला है, जब हक में फैसला ना आए तो कहे जी मैं अदालतों को ही नहीं मानता। सो ये मामलात होंगे तो जो सिविल सिस्टम ऑफ हमारी लीगल निज़ाम है वो सारा क्रम्बल हो जाएगा। अब जो बात ये है कि अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट अदालत का ऑर्डर देखें तो मुझे भी लगता है एज ए लीगल एक्सपर्ट कि उसके अंदर कुछ इबाहम हैं। जिस लेवल जिस तरह इस तरह का ऑर्डर एक किस्म का इन द नेचर ऑफ अ फाइनल रिलीफ है, ये इंटरिम स्टेज पे नॉर्मली नहीं दिया जाता और इसके अंदर नॉर्मली पार्टीज को पहले नोटिस किया जाता है, रिप्लाई ली जाती है, सुना जाता है और उसके बाद ये ऑर्डर पास किया जाता है। और गवर्नमेंट जेन्युइनली फील कर रही है कि दे आर एग्रीव्ड ऑफ दिस ऑर्डर। एक और इस ऑर्डर के अंदर इशू है कि एक प्रेसिडेंट होता है, जब अदालत एक फैसला कर देती है वो फिर हर तरह के बंदे। सवाल ये है कि क्या एक बंदा, क्या थ्रेशोल्ड होगा जिसकी बेसिस पे एक बंदा सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के अंदर जा सकता है और कह सकता है कि जी मुझे एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए।
اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا ایک مفصل فیصلہ آنا پڑے گا جو پھر فار آل ٹائمز ٹو کم اپلائی ہوگا. تو یہ ایک فیکٹر ہے جو عدالت نے پریزن رولز کو اس طرح اس اپنے انٹرم آرڈر میں انٹرپریٹ ہی نہیں کیا. تو جو جب ریویو آئے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا لا, ایز این آفیسر آف دا کورٹ, جو بھی پھر عدالت کا فیصلہ ہوگا یا جو ہے وہ ایز ساری پارٹیز کو ماننا پڑے گا, سبجیکٹ ٹو دی رائٹ آف این اپیل اینڈ ریویو. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر قانون, اور وہ بتا رہے تھے کہ کچھ ابہام تو اس میں ہیں, لیکن ایٹ دی ادر ہینڈ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ یقینی طور پہ اب جاری کر دیا گیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا.